کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور خاندان اجاڑ دیا۔ کماڑی گیٹ نمبر 17 کے قریب ٹریلر نے موٹر سائیکل کو روک ڈالا۔ موٹر سائیکل سوار 3 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں میاں بیوی اور 2 سالہ بچہ شامل۔ لاشیں ضابطے کی کارروائی سول کے لیے اسپتال منتقل۔ ٹریلر ڈرائیور جائے حادثہ سے فرار۔ آئی سی آئی پل پر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق افراد کی شناخت گلفام اور عامر کے نام سے ہوئی۔ گلفام سے پولیس کانسٹیبل کا کارڈ ملا، ڈسٹرکٹ سٹی میں تعینات تھا، ڈرائیور گرفتار۔ افسروں جواب دو، خون کا حساب دو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بڑے افسران پر برس پڑی۔ لاہور میں ماں بیٹی کی المناک موت پر پہلے بریفنگ لی، پھر تیکھے سوالوں کے ساتھ کلاس لی۔ کہا اس غفلت میں اور قتل میں زیادہ فرق نہیں، اگر یہ میری یا آپ کی بیٹی ہوتی سارا سسٹم ہل کر رہ جاتا۔ کمشنر، ڈی سی، اسسٹنٹ کمشنر، ایل ڈی اے اور واسا سب ذمہ دار ہیں۔ خاتون کی لاش 3 کلومیٹر دور ملی اور کہہ دیا گیا واقعہ ہوا ہی نہیں۔ سیف سٹی کیمرے میں کیوں نہیں دیکھا؟ سیف سٹی کے سربراہ احسن میری کال پر گئے اور دیکھا آپ کی نااہلی سے ماں اور بیٹی مر گئی۔ ہر سطح پر مجرمانہ غفلت ہوئی۔ خاتون کے شوہر کو ہمدردی کے بجائے تھانے لے گئے۔ کیا کام بند ہونے کے بعد مین ہول کو کسی کے مرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے گا؟ اے سی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ واقعے کی جگہ کبھی گئے ہی نہیں۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر ظاہر حسین کو گرفتار نہ کرنے پر وزیر اعلیٰ برہم۔ کہا اب مزید آپ کس غفلت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کانٹریکٹر سے 1 کروڑ روپے لے کر لواحقین کو دیے جائیں۔ لاہور میں ایک گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے والی ماں بیٹی کی لاشیں شورکوٹ پہنچا دی گئیں۔ گزشتہ روز ماں بیٹی کا گٹر میں گرنا انتظامیہ نے فیک قرار دیا تھا۔ ماں بیٹی کو بچانے کے بجائے خاتون کا شوہر گرفتار کر لیا۔ شورکوٹ کی سعدیہ بیٹی کو لے کر داتا دربار آئی تھی۔ واقعے سے پہلے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ ورثاء نے ماں بیٹی کی موت کا ذمہ دار انتظامیہ کو ٹھہرا دیا۔ کہا پولیس نے ہم پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا، ریسکیو آپریشن جاری رہتا تو دونوں کی زندگیاں بچ جاتی۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر پروجیکٹ مینیجر اصغر سندھو، سیفٹی انچارج دانیال، سائٹ انچارج احمد نواز کو پولیس نے دھر لیا۔ ماں بیٹی کی موت کا مقدمہ دفعہ 322 کے تحت درج کیا گیا۔ اپنی کوتاہی ماننے میں، معافی مانگنے میں کبھی چھوٹی نہیں ہوتی۔ میرے سے یقیناً یہ غلطی ضرور ہوئی ہے کہ جو انتظامیہ جھوٹ بول رہی تھی، مجھے اس کو جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کرنا میرا گناہ بنا، اور اس گناہ کے لیے میں ہر طرح کی سزا کے لیے تیار تھی۔ اگر میری ریزگنیشن سے جو ہے وہ انصاف مل سکتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ بھاتی گیٹ واقعے پر وزیر اطلاعات پنجاب کی معذرت۔ کہا افسوسناک واقعے پر دکھی اور شرمندہ ہیں۔ انتظامیہ نے غلطی چھپانے کے لیے غلط حقائق شیئر کیے۔ وزیر اعلیٰ نے غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپایا نہیں، ذمہ داران کو گرفتار کرایا۔ پنجاب میں انسانی جان کے ضیاع کی کوئی معافی نہیں۔ میں ذاتی طور پر بھی بہت شرمندہ اور معافی کی طلبگار ہوں۔ انتظامیہ جو بتا رہی تھی وہ مجھے شیئر کرنا پڑا، استعفیٰ دینے کے لیے بھی تیار تھی۔ وزیر اعلیٰ کا حکم تھا، میری غلطی نہیں ہے۔ سانحہ گل پلازہ پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان۔ سندھ حکومت نے اپوزیشن کا مطالبہ مان لیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا، عدالتی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا۔ حاضر سروس جج کے ذریعے انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ عدالتی تحقیقات کا فیصلہ کسی سیاسی جماعت کے دباؤ میں نہیں کیا۔ انکوائری مزید شفاف بنا رہے ہیں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ تحقیقات کے بعد ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں غفلت برتنے والے بڑے افسر معطل کر دیے گئے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ہائیڈرنٹ انچارج، چیف انجینئر واٹر بورڈ، سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروس، ڈائریکٹر اور ایڈیشنل کنٹرولر سول ڈیفنس جنوبی کی معطلی۔ شرجیل میمن نے کہا کمشنر اور کراچی پولیس چیف کی رپورٹ کی روشنی میں فیصلے ہوئے۔ پولیس گل پلازہ کی انتظامیہ کو بھی شامل تفتیش کرے گی۔ عمارت کی غیر قانونی لیز دینے والوں سے بھی تفتیش ہوگی۔ ماضی کے میئر نے آنکھیں بند کر کے گل پلازہ کی لیز دی۔ اینٹی کرپشن کو لیز میں بے ضابطگیوں پر کارروائی کی ہدایت کرتی ہے۔
गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी गई। दुकान नंबर 193 ग्राउंड फ्लोर पर माचिस जलाने से मसनूई फूलों में आग भड़की। आतिशगी सामान के बायस आग तेजी से फैली। सीढ़ियों और रास्तों में धुआं भरने से मुतअद्दिद अफराद फंस गए। इमारत के डिजाइन ने आग को तेजी से फैलने में मदद दी। रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने के इब्तदाई लम्हात में इमारत से बरवक्त इत्तला नहीं दी गई। पहला फायर टेंडर 10:34 पर पहुंचा तो आग मेज़नाइन से ऊपर तक फैल चुकी थी। पानी जल्द खत्म होने से आग पर काबू न पाया जा सका। तकरीबन 11:53 के बाद हाइड्रेंट से बाकायदा पानी मिलना शुरू हुआ। शदीद आग बुझाने के लिए वसाइल नाकाफी थे। के पास भारी आग के लिए दरकार जदीद आलात मौजूद नहीं थे। मेज़नाइन फ्लोर पर मुतअद्दिद अफराद फंसे रहे। बरवक्त कटिंग टूल्स ना होने से लोहे की ग्रिल्स काटने में ताखीर हुई। फुटेजेस के मुताबिक इब्तदाई मिनटों में कई अफराद बगैर किसी मुनज़्ज़म इनखला के इमारत से निकलते नजर आए। मेज़नाइन फ्लोर में फंसे अफराद की झलक मिली। धुआं तेजी से फैला और निकलने के रास्ते महदूद थे। सानेहा गुल प्लाजा मजीद 15 लापता अफराद के DNA के नतायज जारी। इंचार्ज शनाख्त प्रोजेक्ट ने बताया मजमूई तौर पर शनाख्त लाशों की तादाद 69 हो गई। फॉरेंसिक शवाहिद से बाकियात 42 अफराद की करार पाई। बाकियात में से 22 अफराद की शनाख्त DNA से की गई। लाशों के मकाम का तयन मोबाइल फोन्स, लोकेशन और दीगर साइंटिफिक तरीके से किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद बराह रास्त फ़ज़ाई राबता बहाल। बमान बांग्लादेश एयरलाइन की पहली बराह रास्त परवाज ढाका से कराची पहुंच गई। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारे को वाटर सैल्यूट पेश किया गया। तैयारे में 149 मुसाफिर सवार थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने खुशामदीद कहा। एयरपोर्ट पर केक काटने की तकरीब हुई। गवर्नर का कहना था साजिशें नाकाम और दूरियां खत्म हो गईं। बांग्लादेश के अवाम के सामने भारत का चेहरा बेनकाब हो चुका है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की मोहब्बत का सिलसिला रवाबित में बदलेगा। ये सफ़र मोहब्बत, अमन और तिजारत का जरिया बनेगा। दोनों मुल्कों के अवाम के दिल के एक साथ धड़कते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुत्तहिद होना भारत के मुंह पर तमाचा है। दोनों मुल्क मिलकर भारत का मुकाबला करेंगे। बराह रास्त परवाज़ों की बहाली दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम संग मील करार। PIA निजकारी की ट्रांजैक्शन से मुतालिक दस्तखत की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा PIA की निजकारी का अमल आज शानदार अंजाम को पहुंचा है। आरिफ हबीब और उनकी टीम का पाकिस्तान की सनती तरक्की में नुमायां किरदार है। आरिफ हबीब ने तकरीब से खिताब में कहा, बहुत जल्द बड़ी तब्दीली नजर आएगी। कंट्रोल मिलते ही दिन रात काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं। सरहदों का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बहावलपुर गैरिजन में गुफ्तगू। खैरपुर टामी वाली में जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। कहा, जंग की नौयत तेजी से बदल रही है। मुस्तकबिल के मैदान जंग के तकाजों के लिए हर सतह पर आला दर्जे की तैयारी नागुज़ीर है। मुसल्लह अफ़वाज मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीली के अमल से गुजर रही है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए ज़हनी तब्दीली वक्त की अहम ज़रूरत है। ISPR के मुताबिक मशकों में ड्रोन्स, जदीद निगरानी के आलात, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया। फील्ड मार्शल ने जवानों के आज़म, पेशेवराना महारत और तैयारियों को सराहा। रूही ई स्किल्स लर्निंग हब और आर्मी पब्लिक स्कूल अब्बासिया कैंपस का इफ्तिताह किया। यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुल्क के बड़े एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मईशत की सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर गुफ्तगू करेंगे और कौमी मईशत में नुमायां किरदार अदा करने वाले एक्सपोर्टर्स को अवार्ड्स भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की सनत, तिजारत और बरामदात में इजाफे का अपना विजन पेश करेंगे। कारोबारी बरादरी को बताया जाएगा कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकाल कर इस्तेहकाम तक कैसे लाया गया। वज़ीर-ए-आज़म मईशत को इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ ले जाने के लिए मुस्तकबिल का रोड मैप पेश करेंगे। सरमायाकारी को आसान बनाने और बिजनेस फैसिलिटेशन से मुतालिक हुकूमती इक़दामात पर भी गुफ्तगू होगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से टेलीफोन की गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं का बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने अमन के फ़रोग के लिए पायदार मुज़ाकरात और सिफारती तबादला ख्याल की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का मिसिसिपी और लुजियाना में हुई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मशरकी अमरीका के कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे है। मिसिसिपी में 1 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम हैं। महकमे मौसमियात के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में शदीद सर्द हवाएं चलने और सर्दी की ये लहर अगले हफ्ते तक बरकरार रहने की पेशगोई। हुकाम के शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। 7 साल और 7 मैच का इंतजार तमाम। पाकिस्तान ने 2018 के बाद ऑस्ट्रेलिया को T20 में पहली शिकस्त दे दी। पहले T20 में ग्रीन शर्ट्स 22 रन से कामयाब। 169 रन के ताकुब में कैंगरूज 8 विकेट पर 146 रन बना सके। इब्रार अहमद और साइम अयूब की 2-2 विकेटें। बाबर आजम के 3 शानदार कैच। कज़ाफी स्टेडियम में कौमी टीम ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 168 रन बनाए। साइम 40 और कप्तान सलमान 39 रन के साथ नुमायां रहे। साइम शानदार ऑलराउंड की कारकर्दगी पर मैच के हीरो करार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर के हमरा स्टेडियम आमद। मैच के बाद खिलाड़ियों से मुलाकात करके मुबारकबाद दी। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा मुकाबला हफ्ते को खेला जाएगा। पाकिस्तान का अली अकबर फ्रांस का कौमी हीरो बन गया। पेरिस में निस्फ सदी से अखबार बेचने वाले पाकिस्तानी को फ्रांस का आला सिविल अवार्ड मिल गया। सदर मैक्रोन ने अली अकबर के सीने पर नाइट ऑफ द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मेरिट सजाया। अली अकबर को प्रेस की आवाज़ करार दिया। कहा, हमें फ़ख्र है कि आप फ्रांसीसी हैं। अली अकबर 1973 में रावलपिंडी से पेरिस गए। एजाज़ में मिलने पर कहा, एक आम सा इंसान हूँ, लोगों की मोहब्बत और सदर की पजीराई पर बेहद खुश हूँ। और लॉलीवुड की नामवर अदाकारा नीलो को मदाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। नीलो फिल्म सन्नत के सुनहरे दौर की कामयाब अदाकारा थी। 15 साल की उम्र में फिल्मी सन्नत से वाबस्ता होने वाली नीलो सदी तक फिल्मों में फ़न का मुजाहरा करती रही।